Guys, today's lesson goes to all the people who want to perform really well in their interviews. That freaks them out. That really freaks them out. This question, tell me something about yourself. First question, tell me something about yourself. That really freaks out people. They have no actual idea that how to answer this question. And they just end up being blank. They have no way out how to answer this question in front of the interviewer. Well guys, if you are looking for the answer of this, you must watch this video. So stay tuned with me. My name is Abhishek Pandey, and today, let's get started. Guys, first of all, some of the things that you need to notice before going for an interview. First of all, you need to dress up well. You should have great dressing sense. There is formal dress you must wear. And apart from that, you should be very loyal. You should be very thankful for the interview. Okay? So here we are. We start the answer of this question from giving thanks to the interviewer. The line is, thanks for giving me an opportunity to introduce myself. Thanks for giving me an opportunity to introduce myself. ओके सो ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप उस बंदे का जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, आप उसके लिए थैंकफुल हो कि आपका वो इंटरव्यू ले रहा है, आपको चांस दे रहा है अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए. Okay, that brings me to the next one. We start with our name. Like my name is your full name. In my case, my name is Abhishek Pandey. Okay, so there should be a full name. Okay, so either you could say my name is Abhishek Pandey, or you have two options. I am Abhishek Pandey. My name is Abhishek Pandey, or I am Abhishek Pandey. Okay, ठीक है. तो मतलब क्या है कि इन दोनों सेंटेंस का हम यूज कर सकते हैं, बट ध्यान से इतना रखना है कि आपको अपना फुल नेम बताना है, कोई भी शॉर्ट नेम का यूज नहीं करना. एक और चीज जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा, बहुत से लोग बोलते हैं माई सेल्फ. वो बोलते हैं माई सेल्फ अभिषेक पांडे, माई सेल्फ राम. माई सेल्फ बिल्कुल यूज नहीं होता गाइज. अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो इट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग. Okay, so make sure you choose between these two. Okay, and I hope it's very good, very formal. Okay, here the next term is place. Well, where are you from? I am from your state name. I'm from Bihar. I'm from UP. Okay, so I'm from Bihar, I'm from UP. Either this or this one. You have two options. Again, I belong to Bihar, I belong to UP. But I have seen a lot of people making this mistake. वो यहाँ am use कर देते हैं. वो बोलते हैं I am belong to. No, that is wrong. I belong to. No, I am. Okay? So make sure you don't use am. So it's never I am belong to. It is always I belong to. Okay? Let's talk about qualification. अब यहाँ सबसे बड़ी गलती लोगों की ये होती है कि मान लो वो ग्रेजुएट है, तो वो क्या करते हैं, अपने पिछले क्वालिफिकेशन को बताना शुरू कर देते हैं कि मैंने 10th किया है, मैंने 12th किया है. एक्चुअली ऐसा आपको कुछ बताना ही नहीं है. आपको हमेशा अपने हायर क्वालिफिकेशन बताने होते हैं वहां पे. सो यू हैव टू गो विद योर ओन हायर क्वालिफिकेशन व्हाट यू हैव अचीव्ड. ओके, सो हियर वी आर. आई एम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट. Let's say like आप graduate हो तो सीधा बोल दो I am graduate और I am post graduate. Okay, और अगर आप graduation कर रहे हो, अगर आप मान लो कि फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो आप बोलोगे I am doing graduation second year, third year or first year, whatever. Okay, तो ये आपको mention करना है सर. ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल रहे हो कि I have done 12, now I am doing graduation. ऐसा कुछ नहीं करना है आपको. आपको सिर्फ इतना बोलना है कि I am doing graduation, I am graduate. Okay? और हाँ, अगर आपने 12th किया है तो आप सिंपल बोलो I have completed 12th. अब बात करते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशन की. एडिशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स हम अपने एकेडमिक और ग्रेजुएशन के अलावा करते हैं. उसके अलावा अपने लाइफ से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हम वो कोर्सेज करते हैं. ठीक है, तो देखिए
I have done 6 month basic computer course from so and so institute. इसके अलावा और भी कुछ लिख सकते हो, जैसे कि आप ये लिख सकते हो कि I have done a spoken English course from so and so institute, okay, or I have done advanced Excel or Tally from so and so institute, okay. तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, जो भी आपका एक एडिशनल क्वालिफिकेशन बनता है जो इसमें ऐड हो जाता है, जो बहुत अच्छा होता है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक्सपीरियंस। ईदर देयर आर टू ऑप्शन। फर्स्ट, ईदर यू आर अ फ्रेशर, तो आप बोलोगे आई एम अ फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हो, आप फर्स्ट टाइम किसी जॉब के लिए जा रहे हो ग्रेजुएशन करने के बाद, तो एक्सपीरियंस तो है नहीं आपके पास, तो उस सिचुएशन में आप क्या बोलोगे, आई एम अ फ्रेशर। बट if you have experience, if you have worked somewhere, so you can't say fresher. In that case you will say I have 3 years experience in web developing, teaching. I have 6-year experience in like typing or whatever, okay. So वहां आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन करोगे, ठीक है। लास्ट में जो आता है वो है हॉबी। और एक चीज बिल्कुल ध्यान रख लो, हॉबी नाम कभी नहीं दिया जाता जब भी आप अपना हॉबी को बताते हो। जैसे ये नहीं कि माय हॉबी इज डांसिंग, नो, डोंट से दिस। डायरेक्टली आप इसको रिप्लेस कर दो, इस वर्ड को, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ वाचिंग मूवीज, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग। और यू कुड से आई लव रीडिंग, आई लव डांसिंग, आई लव कुकिंग, ओके। सो दिस कैन बी योर हॉबी, ठीक है। और एक बात और, कुछ लोग कहते हैं फैमिली बैकग्राउंड को मेंशन करना। कोशिश करो कि फैमिली बैकग्राउंड आप मेंशन ना करो, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसे कुछ चीजों से मतलब है, आपके नाम से, आपकी क्वालिफिकेशन से, आपके एडिशनल क्वालिफिकेशन से, आपके एक्सपीरियंस से। उसको कोई मतलब नहीं है आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि उसको सिर्फ आपसे लेना देना है कि क्या आप उस जॉब के लिए फिट हो या नहीं हो, ठीक है। फिर भी अगर वो पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, सो इट्स वेरी सिंपल, यू कुड से देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, और अपने फैमिली मेंबर को आप डिटेल में बता सकते हो, ठीक है। एंड करना है वो ये है, दैट्स ऑल अबाउट मी सर, दैट्स ऑल अबाउट मी सर। इसको बोलने के बाद आप बोलोगे दैट्स ऑल अबाउट मी सर, ओके। So that brings me to the end of this beautiful video of tell me something about yourself, and I hope you understood it. And do make some comment if you have any query, if you want to ask something. So that's it for today.